So this is a very famous verse. Bahunama janama namante Jnanavan ma prapadyate Vasudeva sarvamiti Samahatma sudurlavaha. After many births and deaths, whose actually knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. So this is Bhagavad Gita. There is one more verse. Ye yatha mara prapadyante tam tadaiva bhajameham. To degree you surrender, to that degree Krishna reciprocates. That's also true in our relationship. We don't relate to everybody equally. To the degree he has a thick relation, to that degree we relate. It's like Arjuna is Krishna is referred to the Bhagavad Gita as Rishikesha in the second chapter. And Prabhupada writes in the purport, is control of the senses, but depends on how much you surrender. For a person like Arjuna is totally surrendered, it completely takes charge of him. That's why I say that we have power of speaking, we have power of thinking. But actually this should be, what is the famous line that comes in this purport? Prabhupada says, okay, you may have all these things, but these are not important if not related to the Supreme Personality. They are useless. You may have something. Just like Prabhupada gives example of zero. You have so many zeros, it has no value. I can speak very eloquently, and I can think very nicely, I can present very nicely, I can quote 100 shlokas very nicely. Correct? Or there are so many abilities people have. I can make this. Some people can make big construction. Some people can make big helicopter. All these abilities, if they are not used for Krishna's pleasure,
it is just series of 0, 0, 0. Any value? If you write 1 0, you write 100 0. Any difference? Any difference? 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. But if you put 1, and the more the ability is nicer, it will become proper, says 10, 100, million, billion. One lecturer says. He's basically encouraging, is saying you people may have so many abilities. But if you put Krishna, it will become wonderful. Otherwise, it's 0. That's 0. Nothing. Okay. That's the life of a devotee. And in the beginning, when he began Krishna consciousness, the Prabhupada is talking how we are leaning toward impersonalism. I had small realizations on it. I told you, just like you go to a conductor, and when you say, give me a ticket, actually for you it's impersonal. You don't even see what is his face. Is he, happy, sad? You don't look at him. You're not bothered what is his identity. Just you get your ticket, you forget him. So there is a leaning toward impersonalism even in spiritual life. Guy, namaskar kar diya, kuch hai acharya. We have no affection for the acharya in the beginning stages. We look at the deities, people है कुछ भगवान है, नमस्कार कर दिया. कौन है वो भी मतलब नहीं जनरली. क्योंकि हजारों मंदिर है, हजारों भगवान है, सब जगह नमस्कार कर दिया. एक एंड वाई जनरली कुछ आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरा इंद्रिय भोग अच्छा हो जाएगा, तो सब जगह नमस्कार कर लो. कभी कभी जाते हैं तीर्थ यात्रा में, मनोकामना रहती है कुछ इंद्रिय भोग की, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, मेरा लड़का नहीं हो रहा, ठीक है, जॉब नहीं लग रही, कह रहे ऐसी तरह तरह की बहुत बीमारी है. ये सब परेशानी से लोग तंग रहते हैं, करेक्ट. और जहाँ मंदिर गए, तीर्थ गए, नमस्कार करते चलो, मन में वही रहता है, शुभ कर देना, शुभ कर देना, सब शुभ कर देना, इधर भी हाथ लगा, उधर भी हाथ लगा. इनफैक्ट जो कि तीर्थ यात्रा है, वन पर्सन हैंड अल्लाह जरा रिपीट मारता रहे, करेक्ट, विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो. Just like I remember we went to Srirangam, he said, you here, this river is going below, can you hear, correct? True, some people knew what they are doing, others are just doing it because some Shubha will happen, I should put my ear there. Somewhere there is sand, they go below, they take mud and they eat. Some people know why they are doing, other people he is doing, they will also do. So, we had gone to the place Rupa Goswami Samadhi, with the Radha Damodar temple, correct? So there some people go, there is a pit, they go take some dust and they put in their mouth. But some people know what they are doing. Other people, शुभ है, सब करो. सब मेरा इंद्रिय भोग शुभ हो जाएगा. तो ये भक्ति नहीं है. इसलिए कृष्ण से सर्वधर्मान परित्यज, ये सब नाटक बंद करो. माँ एकम शरणम रजा, ढंग से शरण लो. ये सब नाटक है तरह तरह के. बेसिकली I gave you the joke, no? As again to be in this reference. क्या हुआ कि एक बारी मंदिर में there was a पुजारी था और भगवान की पूजा कर रहा था 60 साल से. 20 साल से शो शुरू किया, 80 साल हो गए. और एक दिन 80 साल हो गए तो उसको लगा यार 80 साल मैंने आरती करी है, ये किया है, वो किया है, भगवान ने दर्शन नहीं दिए, अब मैं तंग आ गया. तो ही वेंट टू द ऑल्टर एंड ही सेड, देखो तुमने 60 साल से मैंने पूजा करी तुम्हारी, ठीक है, कुछ नहीं किया आपने, एक बारी दर्शन तक नहीं दिया. यार वो कुछ मतलब जैसे कुछ, तो आपका मतलब मैं तो तंग आ गया, मैं तो निकलता इधर से. तो उसने घंटा रखा, आरती प्लेट रखी और चला. तो सडनली डीटी ने हाथ उसके कंधे में रखा, किधर जा रहे हो? तो डीटी स्पोक, वेयर आर यू गोइंग? तो अभी क्यों है, 60 साल तक चुप थे, अभी क्यों हाथ रख रहे हो? बोले अभी तक तुम्हारी सेवा जो थी नाटक की चल रही थी, बस पहली बारी तुमने पर्सनली मेरे को बात करी. यू गॉट इट? पुजारी भी जो आरती के लिए जाता है उसके मन में भी रहता है, वो बैंक अकाउंट बंद नहीं किया, वो अभी पानी नहीं खोला, कल चपाती थोड़ा ज़्यादा खा लिया था, आज जल्दी सोऊंगा मैं. भगवान को सोच भी नहीं रहा, आरती चल रही है लेकिन मन इन चीज़ों में है. करेक्ट? जब आप सोच ही नहीं रहे भगवान का, तो भगवान क्या रेसिप्रोकेट करेंगे आपको? आप समझ रहे नहीं समझ रहे? मतलब आपका मन कहीं और है, सेवा चल रही है लेकिन मन कहीं और है. एक बारी भी तुमने पर्सनली मेरे को ये नहीं बोला भगवान स्वीकार करो सेवा. तुम लगे थे, मन कहीं और था, कर रहे थे आरती, डंग चल रहा था, अब नाटक चल रहा था. पहली बारी तुमने पर्सनली मेरे को बोला आप दर्शन क्यों नहीं देते, पहली बारी, तो मैंने पहली बारी रेसिप्रोकेट किया. एग्रीड? सो सेम वे अभी जो हमारा बिगनिंग में जो लीनिंग है स्पिरिचुअल लाइफ में, आवर लीनिंग इज टू इम्पर्सनलिज्म. वही कंडक्टर का एग्जाम्पल, पर्सनल है ही नहीं. जैसे कॉलेज में जाते हैं, टीचर से मिलते हैं, कुछ ये साइन कर दो, टीचर को देखते भी नहीं है, खाना खाए नहीं खाए. एक मेरे को सेठ बोल रहा था, बहुत बड़ा सेठ हो,
तो जब भी वो अपने नगर में पहुंचता है हज़ारों लोग उसको मिलने आते हैं। मैंगलोर का ही सेट है, पूरा शहर जाता है उसको मिलने, बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। तो अब बैंगलोर क्या है, बैंगलोर में कोई कदर नहीं करता उसको, यहाँ पूरा शहर आता है उसको मिलने। और सबको कोई भी कुछ बोलता है, मेरा बेटे का पढ़ाई करना है, पैसा नहीं है, हस्बैंड नहीं है, बहुत मुश्किल है, हाँ लो बोला, ऐसा मतलब उसका हाथ खुला है। लेकिन एक आदमी भी मेरे को बता रहा था, वो ये नहीं पूछता आपने पानी पिया। सुबह से रात तक भीड़ लगी रहती है, लोग अपना अपना वो देते हैं, वो चेक साइन करता रहता है, देता रहता है, लिखता रहता है, आपको हम भेज देंगे चेक, ये कर देंगे, वो कर देंगे। एक आदमी ये भी नहीं पूछता कि आपको पानी पिया। सब उससे कुछ लेने जा रहे हैं। तो जनरली हम भी भगवान के पास जाते हैं कुछ उससे खींच के लाने के लिए, कोई भी इसलिए नहीं जाता भगवान की सेवा करने के लिए, कह रहे बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्म लगते हैं असली भक्त बनने में। भक्त कभी मांगता नहीं है, उसको शर्म आती है अगर उसने गलती से भी भगवान से कुछ मांग लिया। ये एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं गोस्वामीज़ का, हमारे दो भयंकर गोस्वामीज़ हैं। एक्चुअली ये पूरा जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है, ये नहीं है कि हम लोग कुछ अपने मन से बोल रहे हैं, ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है और ये सेम गुरु परंपरा चलती रहती है कृष्ण तक, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु को ये मिशन में ये चीज़ क्या है, उनके 6 गोस्वामी को उन्होंने बोला था कि जो भी उन्होंने आदेश दिए हैं उनको शास्त्र के अनुसार प्रस्थापित करो दुनिया में, करेक्ट। तो उन्होंने ठीक है बोला। अब जो 6 गोस्वामी उसमें लगे थे, उसमें से 2 मुख्य थे, रूप और सनातन गोस्वामी। तो एक बार ही क्या हुआ कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी को मन करा, सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई हैं, उनको मन ये करा कि चलो मैं बड़े भाई को एक फीस्ट खिलाता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, भगवान वो बैठे थे, कहाँ से फीस्ट बनाएंगे। वो तो वृंदावन में एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे थे, दूसरे दिन दूसरे पेड़ के नीचे बैठते थे, कुछ उनके पास ऐसा तो मतलब इंतजाम नहीं है। लेकिन क्या हुआ, सडनली एक छोटी सी लड़की आई, बोली बाबा जी घर में कुछ पूजा थी तो ये सब आपके लिए दान है। होता है ना, घर में कभी पूजा होती है, हम साधु संत को जाके दान करना होता है, तो ये आपके लिए दान है। उसमें कुछ सब कुछ था, घी, अच्छे एक्सपर्ट कुक तो थे वो, हमारे जैसे नहीं, सारे आचार्य और एक्सपर्ट कुक्स। प्रभुपाद दास वो ग्रेट एक्सपर्ट कुक। प्रभुपाद जी बोलते हैं कल आलसी लोग खाना नहीं बनाते बस, एंड एक्चुअली वो सत्य है। आजकल कहाँ रेस्टोरेंट का तो सिस्टम ही नहीं था वैदिक टाइम में, घर में खाओ नहीं तो टेम्पल में खाओ, ये रेस्टोरेंट का तो नया सिस्टम है। तो क्या हुआ, ठीक है, तो रूप गोस्वामी ने बहुत अच्छा खाना बनाया, भगवान को नैवेद्य किया, और उसके बाद एक अपने भाई को मैसेज भेजा किसी भक्त के थ्रू कि आ जाओ, थोड़ा एक प्रसाद है आपके लिए। तो भाई पहुँचे, उतना बड़ा प्रसाद जैसे आज सुबह था हमारा, वो भी सोच लो बड़ा बनाया, 20-30 आइटम, पकौड़े, ये वो, ये बड़ा प्रसाद, राइस, सब्जी, पूरी, चटनी, तरह तरह के स्वीट पकवान, गुलाब जामुन, ये सब। और भाई बोले अरे यार इतना बड़ा आपने भगवान को नैवेद्य किया, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ तुम, ये हम तो जंगल में हैं, वृंदावन, ठीक है, यहाँ तुमको ये आइटम कहाँ से मिल गया ये सब। बोले नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, एक लड़की आई थी छोटी सी, उसने ये मेरे को सब दिया। तो बोला लड़की के ज़रा रूप बताओ, तो कान कैसे थे, आँख, थोड़ा आइडिया दिया। सनातन गोस्वामी को समझ आ गया राधा रानी आई थी। तो उन्होंने क्या बोला, बे तुमने तो हमको मार दिया, यू हैव किल्ड मी, यू आर सो शेमलेस, यू हैव टेकन सर्विस फ्रॉम राधा रानी। ये होता है भक्त, समझ रहे, भक्त के लक्षण है। भक्त को शर्म लगती है भगवान से सेवा। आपने सुना होगा स्टोरी रूप सनातन गोस्वामी का, ठीक है। तो भक्त को भगवान से सेवा लेने में शर्म लगती है। जनरली लोग जब मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, कुछ मांगने जाते हैं, ठीक है, हम अभी तो उसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, वो कोई बुरा नहीं है। भगवान जी तो दिल से बोल रहे, उदार हो, एटलीस्ट आए तो कम से कम, आए तो कम से कम। नास्तिक से तो बहुत आगे हो, नास्तिक तो नरक जा रहा है, उससे तो बहुत आगे, एटलीस्ट हमारे चरण आए, हमारी शरण में तुमने कुछ भी मांगा, ठीक है। लेकिन जो असली भक्त होता है कभी नहीं मांगता भगवान से। तो हनुमान राम से जा मांगने जाता है, थोड़ा अच्छा पानी अच्छा होना चाहिए, थोड़ा 2 चपाती की जगह 4, कभी नहीं मांगेगा। क्या भक्त रह गया फिर वो, करेक्ट। कुछ सैलरी मांगी, अरे मैं बहुत युद्ध कर दिया आपके लिए, कुछ दो भाई, कुछ नहीं मांगा, तो भक्त नहीं है फिर वो, ठीक है। तो जनरली जो भक्त के रूप में आप देखते हैं वो पाखंड है। मंदिर में भी लोग जाते हैं, वो भी पुजारी लोग भी नाटक करते हैं,
तो आपकी जो मनोकामना इधर सब पूरी हो जाएगी। तुम ऐसा करो, एक रस्सी उधर बांध दो, एक रस्सी उधर बांध दो, होता ना पेड़ होगा कोई, इधर ये बांध दो, और जब वो मनोकामना पूरी हो जाएगी वापस आके इसे खोल देना। करेक्ट, होता नहीं होता? और कुछ दक्षिणा भी दे देना और वो पेड़ में देखो एक नहीं लाखों धागे बने होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कम थोड़ी है, सबकी प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ लोग बांध के आ जाते हैं उधर। कह रहे यू सीन ना, एनी टेम्पल यू सी कुछ होगा, यहाँ आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जैसे भगवान को लोग ऑर्डर कैरियर बना देते हैं, जब भी मंदिर में जाते हैं एक लिस्ट होती है, 500-600 आइटम की लिस्ट दे देते हैं। जैसे दुकान में जाते हैं ना, राशन की दुकान है, 500-600 की लिस्ट, ये दे देना, ऐसे लिस्ट लेके जाते हैं। तो इसमें आपको भगवान का दर्शन नहीं होगा। अगर आपको कोई आपको अच्छा लगता है, कोई आपको एक्सप्लॉइट करे, अच्छा लगता है क्या, तो आपका दर्शन नहीं होता। दर्शन में कोई फ़ायदा नहीं है, खाली वो यूज़ करेगा आपको, ये भी दे दो, 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 वो नहीं आएंगे पास। क्या फ़ायदा है इसके पास मिलने से? खुशी नहीं होती। भगवान ऐसे लोगों को मिलने नहीं आते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां। ये साधु नहीं, इसको सुरक्षा के लिए भगवान नहीं आने वाले, वो तो भक्त की सुरक्षा के लिए आते हैं। ये भक्त थोड़ी है, भक्त है कनिष्ठ भक्त है। कनिष्ठ भक्त अभक्त थोड़ा बीच में, थोड़ा ही रास्ता बचा, एक थोड़ा हल्की सी लाइन है, उसकी मनोकामना पूरी नहीं, मंदिर भी जाना छोड़ देता है, कोई फ़ायदा नहीं, ये भगवान को कुछ फ़ायदा नहीं। अब दूसरे के पास चलते हैं, है ना, और जनरली इनको थोड़ा प्रचार करो नास्तिक बन जाते हैं, इनका विश्वास बहुत कमज़ोर है। तो इसमें इस श्लोक में प्रभुपाद जी ये चीज़ पहले बताएं क्या, कि शुरू में हमारी आध्यात्मिक में हम इम्पर्सनल की तरह रहते हैं, धीरे धीरे पर्सनल बनते हैं। ठीक है, जैसे आप प्रभुपाद जी की किताब है, ये भी एक सिस्टम होना चाहिए। हाँ, सब लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, हर दिन 1 घंटा। अब तो प्रोग्राम हम जल्दी ख़त्म कर देते हैं 8 बजे, तो आप प्रसाद लीजिए फटाफट, और रात को 1 घंटा हर दिन पढ़िए। ठीक है, वैसे भी सैटरडे को एग्ज़ाम है, सबका मालूम है, तो हर दिन 1 घंटा पढ़ने का रखिए, कुछ ज्ञान मिलेगा। सब कुछ करते हैं हम लोग, प्रभुपाद जी की किताबें नहीं पढ़ोगे कोई प्रगति नहीं होगी आध्यात्मिक में। ठीक है, बैठ के ध्यान से किताबें पढ़िए। ठीक है, एक कुछ एटलीस्ट एक चैप्टर पढ़िए कृष्णा बुक का, या कुछ, दैट विल बी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, मेक अ हैबिट समटाइम समवेयर टू रीड, वेरी इंपॉर्टेंट। सो देन जब हम भक्त के दिल को छूते हैं तब आपको पर्सनल पता चलता है। अगर आपकी परंपरा भी, जैसे हमारी परंपरा तो वैष्णव परंपरा है, सब बड़े बड़े आचार्य हैं, भगवान को पर्सन मानते हैं, भगवान की दिल से सेवा करते हैं, है ना। इस परंपरा में कितने बड़े बड़े आचार्य हैं जो भगवान के बड़े बड़े शुद्ध भक्त थे। ठीक है, लेकिन उस परंपरा में भी हम कनेक्टेड हैं, लेकिन हम भक्तों का शरण नहीं लेंगे, इतने बड़े बड़े आचार्यों के शब्द नहीं पढ़ेंगे, आप भी पर्सनल की धीरे धीरे इम्पर्सनल बन जाओगे। आप खुद को अपने लक्षण देख लो, पूरे दिन में एक प्रार्थना नहीं करोगे तो आप इम्पर्सनल बन गए, आप पर्सनल नहीं हो। पर्सनल होने में आपको मालूम है ये तो आचार्य वैकुंठ से आए हैं, राधा कृष्ण जी आए हैं वैकुंठ से, तो आपकी तो प्रार्थना होगी ना, मेरे को ज़रूर आप शरण दीजिए, मैं आपकी सेवा कैसे करूं, पूरे दिन सेवा करता हूं लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है, दिन में उल्टा सीधा चलता, कोई प्रार्थना हो रही है? आप देखिए, अगर प्रार्थना नहीं हो रही है तो आप अभी इम्पर्सनल में है, पर्सनल में नहीं है। पर्सनल में होने में बहुत कुछ अच्छे अच्छे लक्षण मिलते हैं, भक्तों के गुण अच्छे दिखने लगते हैं, भक्तों की सेवा का मन करता है, भगवान की सेवा का मन करता है, और पूरे दिन दिल में, जैसे माधवेंद्र पुरी जब शरीर छोड़ रहे थे क्या बोल रहे थे, है ना, मेरे को वैकुंठ नहीं मिला, मेरे को वैकुंठ नहीं मिल रहा, कैसे जाऊँ मैं, रो रहे थे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए थे, इमीडिएटली वो बेहोश हो गए थे। क्यों? उनको पर्सन दिख रहा था। हमको तो कुछ है एक, इसको भगवान बोलते हैं लोग, ऐसे दिखता है पर्सन, उनको राधा रानी को के रूप में उनको पर्सन दिखा, हमारे कृष्ण जी आ गए। ठीक है, तो जैसे आपको आध्यात्मिक प्रगति होगी, आपको इम्पर्सनल से धीरे 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 पर्सनल मिल जाएगा। और पर्सनल कैसे? सेवा की इच्छा से, बहुत सेवा की इच्छा से। जितनी आपकी सेवा की इच्छा उत्पन्न होगी उतने आपको भगवान अपने को रिवील करेंगे। सेवोन्मुखे जीवादय स्वयमेव स्फुरति यथा। भगवान जो व्यक्ति हैं उसके 4 चीज़ें क्या हैं? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राम इंद्रिय। नाम से भगवान का शुरू होता है। वीर का नाम क्या है? कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट आदि उनका रूप है, देन उनके गुण हैं, उनकी लीला है, सब कुछ है। आप सब चीज़ से रिलेट करते हो।
ठीक है, सब चीज़ें। कौन है कोई आगे खड़े हैं, इनको भगवान बोलते हैं लोग, ये नहीं, कृष्ण जी खड़े हैं और इनकी लीला है, इनके गुण है, पूरा पर्सनालिटी आप रिलेट करते हो। और जब आपको ये पता चल जाता है कि मेरे आगे एक पर्सन है, आप कैसे बिहेव करोगे। इसलिए विग्रह के जो 64 अपराध होते हैं, सारे के सारे 64 अपराध आप सोचिए, इतना मान लीजिए कृष्ण जी इधर खड़े हैं, एक भी नहीं होगा। वो अपराध यही है, आपको गलती से बचा रहे हैं, क्योंकि आप उनको मान नहीं रहे कि भगवान खड़े हैं इधर, साक्षात भगवान खड़े हैं, आप नहीं मान पा रहे। इसलिए 64 के 64 अपराध होते हैं। क्या क्या अपराध है? पीठ लेके बैठ जाना भगवान के आगे, कोई नहीं करेगा। अगर उसको ये मालूम है भगवान है, कोई पीठ लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे। जोर से नहीं बोलना उनके सामने, क्यों बोलोगे? किसी रेस्पेक्टेबल आदमी की आप जोर से बोलते हो उसके सामने, उसको नेग्लेक्ट करते हो, कुछ भी नहीं करोगे, आप बहुत ध्यान से रहोगे। करेक्ट। तो सारे 64 अपराध हैं विग्रह सेवा में, 64 के 64 आपके बंद हो जाएंगे। अगर आप इतना समझ गए कि ये जो है भगवान जो है व्यक्ति है, एक पर्सन है। लेकिन ये दर्शन थोड़ा टाइम लगता है। पहले इतना तो समझ जाओ, नाम जो है वो पर्सन है। अभी आपका इम्पर्सनल एटीट्यूड चल रहा है नाम जप में भी, अरे कितना अरे 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 राम 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 हरे हरे हरे, ऐसे कुछ वाइब्रेशन सुन रहे हो। ठीक है, सुनो। अभी आपको पर्सन नहीं लग रहा, आपको ये नहीं समझ आ रहा अभिन्नत्वम नाम नामिना, नाम में और भगवान के व्यक्ति में कोई फर्क नहीं है। अभी आपको दर्शन उसका नहीं है। ये आपको दर्शन नहीं है कि जो नाम है दिव्य है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे आगे एक व्यक्ति है, ये नाम के रूप में खड़ा है। उसको बोलते हैं कली काले नाम अवतारा। कली को भगवान नाम के रूप में अवतार लेते हैं। सिमिलरली आप भगवत गीता को पढ़ते हैं, भागवत को पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं हर पेज में कृष्ण जी है। दिखता है आपको? नहीं दिखता। आपको तो शब्द दिखते हैं और इंक दिखता है। कृष्ण दिखते हैं? कृष्ण का ज्ञान और कृष्ण में कोई फ़र्क है? नहीं है। कृष्ण में और कृष्ण के नाम में कोई फ़र्क नहीं है। कृष्ण और कृष्ण के विग्रह में कोई फ़र्क नहीं है। कृष्ण और कृष्ण के प्रसाद में भी कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कैसे बोलते हैं, ये क्या है ये प्रसाद, इसका तो एक एक इतना आनंद दे रहा है, हमको तो नहीं दिखता, क्योंकि हम प्रसाद उसको लेते ही नहीं, हम उसको भी इम्पर्सनल ले रहे हैं। तो एक्चुअली पर्सन से इम्पर्सनल बनना ही आध्यात्मिक प्रगति है। करेक्ट। भक्त को भी लेते हैं, उसको भी इम्पर्सनल रूप से ट्रीट कर, सब चीज़ को इम्पर्सनली देख रहे हैं। ये हमारा नास्तिकता का प्रभाव है। हम लोग अभी नास्तिक हैं करीब करीब। प्रभुपाद जी कभी कभी तो प्रेरणा देते थे, कभी कभी सत्य भी बता देते। एक मॉर्निंग वॉक सबकी तरह मुड़ते हैं। एक्चुअली मेरे को मालूम है तुम सबके सब नास्तिक हो कह रहे। असली में भक्त तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। भक्त तो उसका दिल हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। माता जी को जल्दी आ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम